स्टार्ट कर रहे हैं सीमॉस का जो आपका लास्ट टॉपिक है। Good afternoon, everyone. We are going to start with the types of DAC, digital to analog converter. In this, our input is a digital, and using DAC, digital to analog converter, we convert it into analog. So we will discuss two types of DACs. One is binary weighted resistor DAC, and another is R2R ladder type of a network. Then first we will discuss binary weighted resistor DAC. So in this, we will use an operational amplifier. This is negative and positive. Positive terminal of the op-amp, or we can say the non-inverting terminal, is grounded. And in the feedback, we have used a feedback resistor, that is RF. R1, R2, and R3. We have applied voltage at these terminals. So can you tell me ये किसकी आपके op-amp को हमने कैसे यूज किया है ये? How we have used op-amp in this case? We have applied three inputs. मुझे feedback तो है, but इसका application की how in this case it is working as the summing amplifier. This is the structure of a summing amplifier, because here we will apply three inputs, then at the output you will get the sum of these three inputs. So in this case it is working as a summing amplifier. op-amp is working as a summing amplifier, but configuration कौन सी है आपकी? inverting, because we have applied input at the inverting terminal, so it is known as an inverting summing amplifier. So this DAC, binary weighted resistor DAC, is designed by using the op-amp as a summing amplifier. So in this case the output V0 is equal to, output आपका summing amplifier में क्या होता था? माइनस तो आएगा, why? Because the input is applied at the inverting terminal, so आपका आउटपुट में नेगेटिव साइन भी आएगा, एंड जो आपके इनपुट्स होते हैं they will get multiplied with RF by R1. So RF by R1 into V1 plus RF by R2 into V2 plus RF by R3 into V3. So this is the output of this inverting summing amplifier. We not this. So let's assume that in this case all the resistors are equal. हम इसके थ्री केसेस करते थे समिंग एम्पलीफायर के, that all the three resistors are equal, that R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to RF, then your output is equal to minus of V1 plus V2 plus V3. आपका आउटपुट होगा सम ऑफ ऑल द इनपुट वोल्टेजेस if all the resistors are equal. So ये हमने केस किया हुआ था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का. सो सेकंड हम कंडीशन अगर अज्यूम करते हैं कि हम R2 को, ये हमने केस 1 लिया, व्हेन योर ऑल द रेजिस्टर्स आर इक्वल, सो इसमें वैल्यू पुट कर दो, R R R सारे कैंसिल हो जाएंगे, आपका V0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3. बट इफ R2 is equal to 2 times of R and R3 is equal to 2 times of R and your RF is equal to R1 is equal to R. हमने क्या assume किया सेकंड केस में कि जो आपका फीडबैक रेजिस्टर है and this R1, इन दोनों की वैल्यू R है, but these two resistors are 2 times of these two resistors. इनकी जो वैल्यू है इनके 2 times है R2 and R3. So R2 is 2 times of R1 and RF. जो RF और R1 की वैल्यू होगी R2 and R3, they are twice of their magnitude. So जब आप ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करोगे,
उस केस में आपका आउटपुट आ जाएगा V0 is equal to minus of V1 plus V2 by 2 plus V3 by 3. ये उसी फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपका आउटपुट आएगा. मीन्स बाय चेंजिंग द रेजिस्टर वैल्यू we can scale the individual inputs. See, in this case, when your all resistor values are equal, in that case your output was V0 is equal to minus of V1 plus V2 plus V3. But when we have changed the resistor values, means by changing the resistor values we can scale the individual inputs. Means हम अपने इनपुट्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि हियर द इनपुट इज V1 बट इन दिस केस इट इज V2 by 2. वाई? बिकॉज जो हमने रेजिस्टर यूज किया इस केस में जो R2 था वो 2 टाइम्स ऑफ R है, राइट? सो इसमें हम अपने रेजिस्टर की वैल्यूज को चेंज करके इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर में क्या करते थे, आउटपुट को मींस अपने इनपुट को स्केल कर सकते हैं. मींस इन दिस समिंग एम्पलीफायर इफ द इनपुट्स and weightage of each resistor is according to the binary number. अब हम इसे रिलेट करेंगे हमारे डिजिटल इनपुट के साथ, बिकॉज हेयर वी हैव डिजिटल इनपुट्स एंड आउटपुट हमारा क्या होगा, DAC, आउटपुट इज एनालॉग. सो वी विल ट्राई टू रिलेट इट विद डिजिटल इनपुट्स. मीन्स अगर इस समिंग एम्पलीफायर में इनपुट्स एंड वेटेज ऑफ ईच रेजिस्टर इज अकॉर्डिंग टू द बाइनरी नंबर, then it can be used to convert the digital bits into analog output. Means हम क्या करेंगे कि ये आपका समिंग एम्पलीफायर है, ये आपका R. सेकेंड केस में मैंने इसे 2R रिज्यूम कर लिया. थर्ड की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की मैंने वो 3R रिज्यूम की. फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई हैव अज्यूम्ड R, देन 2R, देन 4R. सॉरी, हम मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू चूज करेंगे कि अगर नेक्स्ट होगा वो आपका 2 का ही मल्टीपल होगा, जो नेक्स्ट रेजिस्टर होगा दैट इज 8R. 2 के मल्टीपल्स 2R, 2R, 4R, 8R, अगर कोई और भी रिक्वायर्ड हो 16R एंड सो ऑन. सो इसमें मैंने 3 रेजिस्टर्स चूज किए हैं, सेम जैसे आपका यहाँ था इन केस ऑफ इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर. बट नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैंने यहाँ इनपुट अप्लाई करना है. पहले आपका इनपुट क्या था, V1, V2 एंड V3. बट इन दिस केस मेरा जो इनपुट होगा या तो रेफरेंस वोल्टेज होगी, सी दिस इज माय ग्राउंड टर्मिनल, या तो रेजिस्टेंस मेरे ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होंगे या फिर मेरे रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होंगे. जो मेरे रेजिस्टेंस है इधर दे विल बी कनेक्टेड टू द रेफरेंस वोल्टेज और टू द ग्राउंड टर्मिनल. So suppose I have 3 bits, V1, V0, V1 and V2. मेरी 3 bits है, 3 binary inputs है मेरे पास, V0, V1, V2, and I want to convert this binary data into analog. तो यहाँ मैं जो assume करूंगी bit that is B0, here I will assume V1 and here I will assume V2. Now in this case, the weightage of each resistor is in the multiple of 2. And according to the binary number, the resistors are connected. These resistors are connected either to the reference voltage or to the ground terminal. अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि आपका कौन सा रेजिस्टर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा और कौन सा आपका रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होगा. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डिजिटल इनपुट्स कि आपका डिजिटल इनपुट क्या है. Suppose your digital input is 101. Then LSB, this is your LSB and this is your MSB. So the LSB B0 in this case and MSB B2 in this case, they are connected to the reference voltage. But in this case V1, the value of V1 is 0. So we will connect this V1 to ground terminal. And these 2 bits will be connected to the reference voltage.
सो इस केस में जो V1 है इसे हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे? सी, ये आपका ग्राउंड टर्मिनल के लिए है, तो ये आगे रेफरेंस वोल्टेज के साथ नहीं कनेक्ट होगी, ये आपकी कहाँ कनेक्टेड है? ग्राउंड के साथ। दिस इज फॉर द ग्राउंड एंड दे आर कनेक्टेड टू द रेफरेंस वोल्टेज। सो इज इट क्लियर कि हमने कौन सी बिट को रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्ट करना है और कौन सी बिट को हमने और कौन से रेजिस्टेंस को वी विल कनेक्ट विद द ग्राउंड टर्मिनल। Means in this case the resistors can be connected to either reference voltage or to the ground with the help of a switches. Here we will use switches. So in this case the output of this inverting summing amplifier is V naught is minus of, सेम जैसे हम पहले लिखते थे कि आपका जो आउटपुट होगा वो इस केस में क्या होगा? माइनस ऑफ आर एफ, ये तो आपका आएगा ही आएगा। See, in all these cases we have RF, RF, RF. We can take RF as common. एंड जो आपकी वोल्टेज है इस केस में, तीनों के केस में जो आपकी वोल्टेज है वो क्या है? V रेफरेंस। सो RF इंटू V रेफरेंस तो आपका आएगा। देन वी हैव रेजिस्टर वैल्यूज, वी हैव V2 बाई R। V2 में रेजिस्टर की वैल्यू क्या है? R। V1 के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 2R। And in case of B naught, the resistance की value क्या है? 4R. So it is B2 by R plus B1 by 2R plus B naught by 4R. So this is the output of this DAC. Is it ये चीज clear हुई? Just tell me, is it clear or not? अच्छा, ये वाला क्लियर Yes, है या ma'am. नहीं? ओके ओके। देन आफ्टर दैट अब आपकी बिट्स क्या थी? दिस इज द फॉर्मूला। ये तो आपका फॉर्मूला आ गया कि आपका ये फीडबैक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस रेफरेंस वोल्टेज, देन बिट्स और जो जो वैल्यू की रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो। नाउ हमारे पास बिट्स क्या थी? V2, V1 एंड V0 की वैल्यू क्या थी? 101। सो इसमें V2, V1 एंड V0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। V2 की वैल्यू 1, V1 की वैल्यू 0, V0 की वैल्यू 1। तो आपका क्या आ जाएगा? ये आउटपुट V naught is minus of RF V reference by R। R आपका कॉमन आ जाएगा, तीनों में से आपका R कॉमन आएगा। देन 1 प्लस 0 बिकॉज दिस बिट इज 0 प्लस 1 by 4। See here we have 4. This 1 plus 0 plus 1 by 4. Then in this case if we assume that द वैल्यू ऑफ आर एफ, जो आपका फीडबैक में रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू भी आर है, इफ वी अज्यूम दैट इट इज इक्वल टू आर, इन दैट केस जो आपका वी रेफरेंस है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एंड वी रेफरेंस को हम अज्यूम करते हैं कि वो हमने 5 वोल्ट सेट किया, कि यहाँ रेफरेंस वोल्टेज की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो हम उसे वी रेफरेंस वोल्टेज को 5 वोल्ट अज्यूम करते हैं एंड आर एफ को हम अज्यूम कर लेते हैं दैट इट इज इक्वल टू आर। सो इन दिस केस मेरे आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5, आर आर कैंसिल हो जाएगा, -5 इंटू 5/4 and it is -25/4 volts. This is my analog output. So in this way we can convert the digital input into analog output. Then in journal V naught is equal to, generally अगर आपके पास, ये तो आपका 3 बिट्स के लिए था, सो ये आपके लिए मोर देन 3 बिट्स भी हो सकता है, सपोज आपके लिए 6 बिट्स के लिए हो। सो इट डिपेंड्स। सो इसके लिए हमने एक जर्नल फॉर्मूला हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। जर्नल फॉर्मूला वो क्या आएगा? माइनस ऑफ वी रेफरेंस इंटू आर एफ बाय आर, समेशन ऑफ I is equal to 0 to I is equal to n minus 1 Vi upon 2 into n minus
1 माइनस ऑफ आई। ये क्या आएगा आपका कि यहाँ पे आपकी रेफरेंस वोल्टेज सेम आर एफ बाई आर। ये आपका डिपेंड करता है कि एन क्या है। एन इज द नंबर ऑफ बिट्स, कि आपका डिजिटल इनपुट की बिट्स कितनी है। सो एन इज द नंबर ऑफ बिट्स एंड आई आपका वेरी कर रहा है। आई इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1, कि अगर बी 0 है तो 2 रेस टू पावर बिट्स आपकी सपोज कितनी है। सपोज इसी के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं, ये 3 बिट है। 3 माइनस 0 माइनस ऑफ 0। सो ये आपका आ जाएगा, इफ इट इज 3 बिट्स, 3 इट इज बी नॉट अपॉन 2 रेस टू पावर 3 इज 8। तो आपका ये ऐसे आगे हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे अगर हमारे पास मोर देन 3 बिट्स हो। ये तो हमारे लिए दिस इज द जर्नल फॉर्मूला। सो इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस, देन यू कैन आस्क मी।